Hi friends, how are you? I hope you are fine and enjoying all the topics which I am taking for you. And my exclusive devotion is to make you, to help you understand the topics which I am taking for all of you. And it is my sole aim to propagate this language. I have launched a campaign for propagating the language, English language, because I think unless until we get proficiency in this language, we are, our progress will be hampered. And it is obvious that our progress will be hampered because, as you know, this language is spoken universally and globally. It is a global language, and we will have to understand and speak this language and write in this language if we want to stand shoulder to shoulder with the other people of this world. So, today I have decided to take a poem of class 12th of Rajasthan Board for Secondary Education, and the poem is The Snare. Now, this poem is very impressive, I think, because this poem imparts a great message of humanity, and it tells us that we must not give up our sympathetic attitude towards the poor and towards the downtrodden. And as soon as we stop thinking about them, our end, that will be the beginning of our end. And as you know, we are also incurring the wrath of God Almighty in form of COVID-19. And one aphoristic saying of William Shakespeare is very apt at this moment, is very good, and this aphoristic saying can certainly describe the present dismal condition of this world. Now, that aphoristic saying is God uses our pleasant vices as weapons to plague us. And one more aphoristic saying, plague, when it is time to plague, when made men lead the blind. So, these two aphoristic sayings have been written by William Shakespeare. As you know, he was a legendary writer, and he is regarded the greatest playwright in English literature. So, now, God uses our pleasant vices as weapons to plague us. It means कि भगवान जो है हमारे जो खुशनुमा पाप हैं उनको हथियार के रूप में काम में लेता है, हमको पीड़ित करने के लिए, हमको संक्रमित करने के लिए. Now, this aphoristic saying is very suitable at this seeing this present scenario. This aphoristic saying suits the situation, because this aphoristic saying means our pleasant vices are in form of the virus, and God has, we, in order to please ourselves, we indulged in
the vice of creating a virus, and we created virus in this world, and God, in order to incurring his wrath upon us, has used those weapons, those virus against us, and God has decided to torment us with these viruses. So we are bearing the brunt of God's fury. Now it's time to plague when madmen lead the blind. कि ये समय एक ऐसा समय आ गया है कि इस समय भगवान भी चाहता है कि लोगों को संकट में, भगवान भी जो है लोगों को संकट में डालने के लिए इसलिए सोचता है, इट इज टाइम टू प्लेग व्हेन मैडमैन लीड द ब्लाइंड, क्योंकि वह कहते हैं कि जहां पागल आदमी अंधे को रास्ता बता रहा है। मतलब कहने का ये है, द सिचुएशन इज वेरी chaotic in this world, has become in this world, and we are facing various problems and miserable situation has occurred while facing this world. So madmen lead the blind. So these two aphoristic sayings can aptly describe the present dismal condition of this world. So dear friends, today I have decided to discuss the poem The Snare, and the writer of this poem is James Stephens. So dear friends, James Stephens is the writer of this poem The Snare. तो ये जो कविता है द स्नेयर, स्नेयर यानी जाल, तो इस कविता का जो लेखक है वो है जेम्स स्टीफन्स। अब सबसे पहले इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट दिस पोइट, एंड लेट मी टेल यू दैट जेम्स स्टीफन्स वाज एन आयरिश पोइट, आयरिश author. He belonged to Ireland. He was an Irish poet. आयरलैंड का रहने वाला था जेम्स स्टीफन्स, एंड इन दैट टाइम इन द contemporary society, the Irish people were living under the oppression of the Britishers. The Britishers had carried out many many acts of persecution upon the Irish people, and the Irish were persecuted under the misrule under the tyranny of the Britishers, and they had enough of this kind of tyranny and this kind of ill treatment. So they decided to wage a war against the Britishers. So क्या वहां के जो आयरिश पीपल जो थे, वो आयरिश लोग जो थे, इनके ऊपर अंग्रेजों का शासन था। काफी वर्षों तक, कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। तो अब अंग्रेजों का शासन रहा तो जो आयरिश लोग जो थे वह एक बहुत ही इनोसेंट, भोले भाले लोग थे। भोले भाले तरीके से वो अंग्रेजों के उस दुर्व्यवहार को सहन कर रहे थे। दे हैड बीन इनकरिंग द wrath ऑफ द ब्रिटिशर्स पेनफुली एंड मिजरेबली, वो सहन कर रहे थे। तो इस कविता में एक रैबिट के बारे में कहा गया है कि एक रैबिट है जो कि एक जाल में फंसा हुआ है। देयर इज अ रैबिट इन दिस पोएम विच इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल, कि एक खरगोश एक जाल में फंसा हुआ है और वह उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये रैबिट जो है, दिस रैबिट इज ए सिंबल ऑफ कंटेम्पररी Irish contemporary innocent Irish people के उस समय के जो भोले भाले आयरिश लोग थे,
ये रैबिट खरगोश उसका प्रतीक है। और इस कविता के माध्यम से मतलब कि कवि लोग जो थे पुराने जमाने में अपनी भावनाओं को इन ऑर्डर टू एक्सप्रेसिंग देयर emotions, views, they used to write poems so that their views could be expressed properly. अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वे लोग जो है इस तरह की कविताएं लिखते थे। उनमें उनका भाव होता था कि ये जो है कोई भी जो अत्याचार हो रहा है, कोई आक्रमण हो रहा है, तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाया करते थे। तो इस कविता में क्या है कि ये कवि जो है जेम्स स्टीफंस कह रहा है कि मैं एक जो है खरगोश के चीखने की आवाज सुन रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि उसकी आवाज कहां से आ रही है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमको ये कहना चाह रहा है कि हम लोग जो है निर्दोषों के ऊपर अत्याचार बहुत करते हैं। वी इंडल्ज इन कैरिंग आउट एट्रोसियस एक्ट्स ऑन द इनोसेंट पीपल। सो व्हाट हैपेंस डियर फ्रेंड्स, क्या हमको जो है निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। और अत्याचार करने से भी बुरी चीज है अत्याचार को होते हुए देखना, अत्याचार को सहन करना। तो अत्याचार को सहन करना अत्याचार करने से भी ज्यादा जो है दुखदायी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उसके प्रति हमारी जो है बिल्कुल ही भावना ही खत्म हो गई है, प्रेम भाव की, दया की। वी हैव बिकम सो अनसिंपैथेटिक एंड so unsympathetic towards the pains of poor people and the miserable people that we don't pay heed, we don't care a fig for them. So पहली लाइन देखिए, I hear a sudden cry of pain, कि ये कवि कह रहा है कि मुझे सुनाई दे रही है एक सडन यानी अचानक चीख सुनाई दी मुझको, दर्द की, पीड़ा की सुनाई दी। देयर इज ए रैबिट इन द स्नेयर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खरगोश है, कोई जाल में फंसा हुआ कोई खरगोश, कोई कांटों में या जाल में फंसा हुआ है, उसका पंजा कोई कहीं फंस गया बेचारे का खरगोश। खरगोश एक किस चीज का प्रतीक है? खरगोश प्रतीक है भोलेपन का, सादगी का। और तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में लोग सीधे लोगों पर अत्याचार करते हैं, बदमाश लोग। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मुझे फिर उसकी जो है चीख सुनाई दे रही है। क्राई यानी चीख, हियर यानी सुनाई दे रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि कहां से वो आवाज आ रही है। तो कवि जो है द पोइट इज एक्सप्रेसिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट टुवर्ड्स दिस कंडीशन, saying that he can't trace where the rabbit is trapped and tell from where, but I cannot tell from where। अब ये लाइनें जो है दो बार कही गई है कि मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि वो कहां से आवाज आ रही है, मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि वो कहां से आवाज आ रही है। तो ये लाइनें इस बात पर जोर दे रही है कि हम जो है बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि लोग पीड़ा में हैं। He is calling out for aid, और वह खरगोश बेचारा पुकार रहा है हमको एड। एड यानी सहायता। एड किसको कहते हैं? एड यानी सहायता। एक और एड होता है एडीडी, एड। एड का मतलब होता है जोड़ना, और ये एड है सहायता। क्राई ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड यानी भयभीत, फ्राइटेंड भयभीत। और उसके जो हमको पुकार रहा है, तो उसके पुकारने से, उसकी चीख से माहौल बहुत ही गमगीन हो गया है, दुखमय हो गया है, भयभीत करने वाला माहौल हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और इससे हर एक चीज जो है वो डरावनी नजर आ रही है, हर एक चीज में हमको डर लग रहा है, उसकी आवाज सुनकर हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब चीज हमको अफ्रेड, भय लग रहा है सब जगह। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग किसको कहते हैं? रिंकल, रिंकल यानी सिकोड़ना। वो खरगोश बेचारा कहीं फंसा हुआ है, अपना मुंह यूं सिकोड़ रहा है,
मुंह इसको जो है अपना मुंह जो है टेढ़ा कर रहा है बेचारा दुख में, और रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को भी सिकोड़ रहा है, और एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वो फिर चिल्ला रहा है सहायता के लिए, अगेन फॉर एड, सहायता के लिए चिल्ला रहा है। एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही है कि वो जो है कहां पर है। बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग, एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वो जगह नहीं मिल रही है मित्रों। वेयर इज पॉ इज इन द स्नेयर, पॉ यानी पंजा, उसका पैर, पंजा, कि उसका पंजा कहां पर फंसा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, अरे वो छोटे साथी मेरे, मैं तुमको सब जगह ढूंढ रहा हूं कि तुम मुझे कहीं मिल जाओ और मैं तुमको तुम्हारी सहायता करूं। तो ये इस कविता के माध्यम से कवि हमको ये कहना चाह रहा है कि हमको अपने दूसरे साथियों के ऊपर दया भाव रखनी चाहिए, जो भी जानवर है, पशु पक्षी है, जो भी गरीब लोग है, जो है परेशानी में है, द पीपल हु आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, द पीपल हु आर सफरिंग अ लॉट इन दिस वर्ल्ड, वी विल हैव टू शो सिंपैथी टू देम, डोंट शो एपैथी टू देम। एपैथी यानी वितृष्णा, बिल्कुल ही उनके प्रति कोई जो है प्रेम भाव रखना ही नहीं। If we do not show compassion for them, then this world will be useless for us. एक अंग्रेजी में कहावत है, God helps those who help, he helps God well, he serves God well, who serves his creatures. नर सेवा नारायण सेवा। If we want to please the God Almighty, then we will have to start helping the creatures made by God, because God will be happy with us in true sense when we start helping the creatures made by God. So ये एक कहावत है, याद रखिए, he serves God well, who serves his creatures, इसको इंग्लिश में कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो आप इसको अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत पड़े पोइम्स का, इस पोइम का, तो आप ये सुविचार जरूर लिखिए, he serves God well who serves his creatures, नर सेवा नारायण सेवा। तो इस प्रकार इस कविता का जो है यहीं पर समापन होता है, और आपसे यही मैं आशा रखता हूं कि आप इस कविता को, इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे और इसको परीक्षा में सही ढंग से इसकी व्याख्या करने में सफल होंगे। इफ यू मैनेज टू अंडरस्टैंड द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, देन योर एक्सप्लेनेशन will certainly be declared a magnificent explanation if you explain the poem in this way, that we must show humanity and we must show compassion, love for all the human beings, fellow human beings and animals and birds of this world, so that we may please God Almighty in true sense. Thank you.